थोड़ा नीचे देखो, क्या देखना? One more. Look at this side. Both of you look at both of you. Straight, ma'am, straight. एक सेकंड वीडियो अरे वीडियो Look at all of you look at sir यहाँ पे. सर सामने अरे पीछे को अरे फ्लैश कौन अश्विनी शोर मचाना चाहिए जल्दी हट रहे. अरे वीडियो हटने बोला फिर भी आगे खड़े हैं. सर सामने हटने दे. सर मैडम यहाँ पे कैसे कैमरा तो नीचे लगाओ ना. चलो पीछे आ जाओ. सर यहाँ पे मेरे वाला नहीं है इधर. सर आपका फ्लैश है. अरे बेसी जा. बैठा आपकी बाल सर यहाँ पे सर सामने सर यहाँ पे सर यहाँ लड़की बच्चा पीछे सामने सर सामने सर बालकनी में सर सामने यहाँ पे सर मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे सर मैडम सर सामने To Rajesh Pardasani, who is producer of the film. Mr. V, please can I have you here? Miss Alicia. And last but not the least, filmmaker who has created and evolved the film industry and will be debuting as an actor for the first time. Please welcome Mr. Mahesh Bhatt with a round of applause. I hope everybody liked the trailer and you guys are excited to watch the film as well, and also Mr. Mahesh Bhatt on the big screen. So before opening the floor for the media for Q&A round, I would like to ask one question to Mahesh sir. Well, yes, you have directed. We have seen you directing many films. At the age of 26, I guess you started with Manzile and Saransh, Zakhm, many more. So, how was your experience like debuting as an actor for the first time on big screen? Well, I'll get some facts right. I think I picked it from Wikipedia. Don't trust Wikipedia. It doesn't have authentic views. I began at 22. I began my career at the age of 21, 22. But yes, after the first disastrous 10 years, which almost pushed me to the brink, but I did not have that vulnerable gene in me to jump into the abyss of darkness. I somehow roughed it out as art happened to me, but I don't have an illusion that I'm an actor. I was approached by Tariq one day through Alicia, and he said, look, I want to make a film which deals with a very complex issue, which is suicide, and what the scars in the city do to individuals. And because the character deals with an aging Muslim man who has tremendous loneliness, but he becomes a kind of an umbrella for a young Hindu boy who comes to the city looking for some kind of place in the sun. I thought that was a very interesting role to project, because I think what the country needs the most is to re-emphasize the need for us to wake up to our plural nature, our
our shared heritage on which this country has been created by the founding fathers. And whenever a filmmaker touches a serious issue like this, which the entertainment industry shies away from, saying that it is too risky, it is too grim, and you have a young filmmaker who dares to back it and then takes unique characters, I think I felt I should support him wholeheartedly. But I told him, जिस तरह आप शूटिंग पे जानवर को लाते हैं और काम कराते हैं, इसमें अगर मैं अच्छा हूँ तो आपकी क्रेडिट, बुरा हूँ तो आपको, क्योंकि the animal cannot take it. So whatever has happened, whatever I have achieved, he has achieved, and if I have not achieved, throw stones at him. Thank you so much, sir. Really, if Tariq sir drove you for this thing, so definitely film contains with a very good content and some amazing things. So now media, I just open the floor for you. Before we start talking, I don't think they need my mic. Yeah, before we get into the details of the movie, I think it's today we have happened to be creating this World Suicide Awareness Day, and one of the reasons that I have come here is because of that significance of the day that we are today, on which we're launching this trailer. There's a line there which comes at the end of the trailer, which the enemy that you're looking for is you. And this is a fact that the earlier we wake up to this reality, जो दुश्मन जिसको आप खोज रहे हैं वो कोई और नहीं, आप खुद हैं, आपको अपने आप से खतरा है। मेरे जहन में एक बात गूंजती है, एक दोस्त हमारे जिसने कहा था कि शहर में खाओ मेरे पास ज़्यादा है, दोस्त कम है। I have more scars than friends in the city. So I feel कि यहाँ it's a dream city, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं अपने सपने लेकर, and I think it pushes you to the edge. But this is an extraordinary city. It has been made by people who came to the brink but did not give up. And somewhere at the end of it all, Tariq has made in this film very clear is that irrespective of the darkness that will come and confront you when you come here, you must believe in one thing, that is that no matter how harsh life is, no matter how bitter things get, don't give up on yourself. Just fight on for one more minute and something miraculous will happen. And I think that's what makes Mumbai City a significant film to back in these times where only entertainment which is being served has found takers. बट साहब मेरा सवाल आपसे है, सबसे पहले जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब ने स्ट्रगल किया है। तकलीफ दर्द जो है किसी को नहीं बख्शती, सबको अपने अपने हिस्से का दर्द झेलना होता है। और यहाँ जो भी जहाँ बैठा है उसने अपनी एक जगह बनाई है, वो स्ट्रगल करके ही पहुँचा। तो ऐसे कोई पत नहीं लगे मेरे में कि मैंने कुछ कमाल कर दिया जो बाकियों ने नहीं किया। हाँ, आई फील दैट कि आपने जो कंपैरिजन किया है कि शायद दी मीडियम ऑफ अनुराग बासु was closer to this medium, but ये बिल्कुल अलग किस्म का एक नैरेटिव है। हाँ, एक ensemble स्टारकास्ट है, एक नैरेटिव ऐसा है जहाँ पर मल्टीपल स्टोरीज को एक थीम से बांधा गया है, बट एक नजरिया जो है वो तारिक का अपना है। एंड आई थिंक व्हाट मेक्स तारिक अ वेरी अनयूजुअल फिल्म मेकर इसके उसका एक अपना रंग है। ये लखनऊ से आए हैं, इनका अपना लहजा, इनका एक अपना मिजाज है। जैसे ये गाना जो है जो आपने सुना, वो जानलेवा गाना, कल मुझे जुबिन मिल गया था हमारे लॉन्च में, तो मैंने कहा कि ये कमाल का गाना है, वो जो मैं हूँ दिल है और आवारगी है। आई थिंक इट्स दैट्स इन अ वे डिफाइंस द सोल ऑफ द सिटी कि इतनी तन्हाई के बाद में कहीं पर एक मिठास है हम सब के अंदर, जिसकी वजह से भी somehow make it through the next morning. तारिक भाई, हाय, over here to your left यहाँ पे। of course बहुत सारे फिल्म मेकर्स होंगे जिसने भट्ट साहब को कोशिश की होगी कि बड़े पर्दे पर आए और एक हल्की सी झलक दिखाए, बट आपको किस तरह से ये ध्यान में आ गया कि भट्ट साहब को ये स्पेसिफिक कैरेक्टर करना चाहिए? ये सही है, ये एकदम हकीकत है, लेकिन मेरे पीछे पड़ने से तो कुछ नहीं होता है। हकीकत ये है कि भट्ट साहब एक आंधी है जो जर्रे को उड़ा के ले जाता है, और मैं वो जर्रा हूँ जो भट्ट साहब की आंधी से उड़ा।
बस आप सब लोग का सपोर्ट चाहिए। और मेरी कोई वो नहीं है कि मैं भट्ट साहब को राज़ी कर लूँ या कॉन्सेप्ट्स बना लूँ, क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ था तो इनकी फिल्में देख के बड़ा हुआ था और कभी सोचा नहीं था कि इनके साथ काम करूँगा। नामुमकिन सी बात थी जो पूरी हुई, और वो इनकी इनायत है और कुछ नहीं। और इसको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अलीशा जी का भी है। नहीं बट साहब, ऐसा क्या आपको तारीख में लगा कि आप तैयार हो गए? ऐसा क्या आपको लगता है दिल को, आपके दिल को वहा जाता है? जिंदगी के मोड़ पे आपको अचानक एक महिला मिलती है जिस पे आपका दिल जो है कहीं पर आ जाता है, और फिर आपकी उस जिंदगी को तहस नहस करके आपके साथ सालों जुड़ी रहती है। दिल वो क्यों करता है वो जो करता है? ये रहस्य को रहस्य रहने दीजिए, इसका जवाब ढूंढिए मत। इसके उत्तर हम देंगे मगर वो सही नहीं होंगे। आ जाता है कभी किसी को देख के लगता है कि ये हमारा अपना ही कोई है जो वापस आया है, और कहीं जैसे कहता है कहीं पर इसका शायद कुछ देना मेरा है बाकी था। उधार बोलते हैं हम तो, हालांकि पूर्ण जन्म और उसमें नहीं यकीन रहते, मगर क्योंकि इससे कहानियां कहती हैं कि कहीं पर कुछ इसका मेरे पास था जो मेरे दरवाजे पे वो लेने आया था, उसका अपना है। मेरे में इतना कुछ है नहीं, मैं कोई अपने तरफ से दूं। ही हैज टेकन इट आउट फ्रॉम मी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको तैयार रहना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपको पहले से चाहते थे और अब तो आप कर चुके हैं, तो आपको दावे करें सर हमारा भी कीजिए। नहीं साहब, ये काम बड़ा मुश्किल काम है। लाइन याद करनी पड़ती, मार्क पे आना पड़ता है। कैमरा के पीछे से दादागिरी करना अलग बात है, कैमरा के सामने खड़ा होकर मुस्कुराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अलग ईडियम है, और मैं बिल्कुल, ये कोई फेक ह्यूमिलिटी नहीं है। आई हैव नेवर डिल्यूटेड माई सेल्फ के आई एम एन एक्टर, रिमोटली एन एक्टर। इसलिए मैं कहता हूँ जिस तरह ये किसी जानवर को लाते हैं उसे परफॉर्म कराते हैं तो क्रेडिट स्टंट्समैन को जाता है या डायरेक्टर को जाता है, उसी तरह अगर मेरा काम किसी को जरा भी ठीक लगता है तो क्रेडिट इसकी है, बुरा लगता है तो मेरे को मत देखिएगा, हमने कभी दावा किया ही नहीं। तारिक सर, आप बहुत अनुभवी हैं। तारिक का पहला शायद डायरेक्शन है, क्या चीज आपको अच्छी लगी आजकल? हालांकि युवा जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यंगस्टर हैं, तो तारिक में आपको क्या ऐसा लगा डायरेक्शन के? जुर्रत, ऑडेसिटी, एक अदा है इसकी अपनी। क्या होता नहीं तो लोग घर से निकलने से पहले चाहते हैं कि वो कामयाब हो जाए। ये गिरने पड़ने वाला खेल है और ये रास्ता इसने कठिन चुना है, मगर इसके पीछे एक प्रोड्यूसर साहब जो थे हमारे, वो थे और उनका बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने बहुत सारी फिल्में बनाई है और जब प्रोड्यूसर जो है आपके ऊपर से पेच छोड़ देता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर मुझे एक बात जो किसी फिल्म मेकर में जो भाती है वो है कि अपने शर्तों पे अपनी समझी हुई जिंदगी को कहानी में परोस के पेश करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक अदा है जिसकी वजह से फिल्म मेकर जो है एक मुकाम तक पहुंचते हैं, और वो गुण इसके अंदर है। Bhatt sir, to your left, over here, to your left, yeah, Vidita from Vikings. My question is, there's a lot of depression in the industry also. Actors are compelled to suicide because of lot of struggles and all. They feel like lot of struggle and all. So what message would you like to give to the actors, young generations who suicide for that? It's a mental illness. जिस तरह जिस्मानी बीमारी होती है, दिमागी बीमारी भी बायोलॉजिकली ट्रीट की जाती है। जैसे आपको डायबिटीज हो जाए तो आपको इंसुलिन के शॉट्स लेने पड़ते हैं, उसी तरह if you are prone towards depression, then if you are clinically if you're clinically a depressed person, you need to consult a doctor who can treat you through medication. Mental awareness, हमारे मुल्क की त्रासदी ये है कि हमने इतने बड़े मुल्क में ये अवेयरनेस को जगाया ही नहीं। लोग आज भी इससे वाकिफ नहीं है कि जो आपके घरों में न जाने कितने घर ऐसे जहां पर आपका कोई अपना डिप्रेशन का शिकार है। माई डॉटर शाहीन, आलिया की जो बड़ी बहन है, पूजा की छोटी बहन है, शी एट द एज ऑफ 16 discovered finally that she is suffering from what is called clinical depression. उसका अक्टूबर में एक अपना एक मेमोर आने वाला है जहां पर उसने
डिप्रेशन के बारे में लिखा है, जिस दौर से वो गुजरी, जिस तकलीफ से गुजरी है. शी ऑल्सो केम टू अ पॉइंट ऑफ कंसिडरिंग सुसाइड एट द एज ऑफ 12-13. तो ये मेरे घर की सच्चाई है, कोई दूसरों की घरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं. और हमने इंडस्ट्री में देखे हैं, हमारे घर में के पीछे जो है हमारी अपनी एक बच्ची एक्ट्रेस थी, उसने जान दे दी थी ना. हाँ, तो हमारे दरवाजे पे आई थी एक दिन काम मांगने, मगर वो हम काम नहीं कर पाए, हमारी पिक्चर नहीं बनी. मगर वो जो मदर्स की हमारी दोस्त, तो हमको वो मंजर याद है ना कि हम गए थे उस घर में जब कोई नहीं आया था, और वो माँ बैठी थी ड्राइंग रूम में, और हमने वो जिस्म देखा बच्ची का जो एक्ट्रेस बनने आई थी, और फिर मरी भी मैंने देखा उसको. ये शहर के ये रूप भी हमने देखे हैं. हमने मैरियट की पार्टीज भी देखी, हमने ये रूप भी देखा, धूप भी देखी है, छांव भी देखी है. वो रंग जो है उस गहरे गाढ़े रंग को कहीं पर तारीख ने जरूरत करके छुआ है. इसलिए मुझे लगा कि इसका अधिकार है, इसका हक है कि वो आके हमसे कहेगा भैया आप अपने जमाने में बड़ी अलग किस्म की फिल्में बनाते थे, जरा हमारा हाथ थामो, हमको भी एक कदम आगे लेके जाओ. तो हमारे इसलिए खड़े हैं आपके पास. वक्त बहुत हो रहा, जाना है, क्या हुआ. Continuing with that, is it really difficult for an actor to survive in an industry like this, where every Friday the questions there's so much of upset? It's a high stress business. It's a high stress business. That's why not many can do it. That's why you have people prone to substance abuse, mood swings. You have a tendency to gravitate towards depression because you are dependent continuously. ट्रेलर दिखा के डर लगा रहता है कि आप लोगों की ताली बजेगी कि नहीं बजेगी. इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए यहाँ पे. आप जानते हैं दुनिया में स्पेक्टेटर्स क्यों है? क्योंकि परफॉर्म करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए. वहां से निकल के आके खड़ा रहना और पूछना भैया हमने बनाया कैसा लगा, और फिर भिखारी की तरह खड़े हो जाना, कटोरा लेके थोड़ा बाबा थोड़ी तारीफ करते हैं, थोड़ी तारीफ करते, अपने आप से नफरत हो जाती है. और कितना ही बड़ा फिल्म मेकर, फ्राइडे जब होता है और 12 बजे का शो लगता है तो हमाम में सब नंगे. तो फिर जिस तरह पॉलिटिशियंस की हालत होती है ना इलेक्शन के बाद में कि क्या होगा, उसी तरह फिल्म मेकर्स की हालत होती है. तो ये इससे कोई बचा नहीं. और यही तो इसकी खास बात है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की. एंड दैट इज द वे इट हैज बीन एंड दैट इज द वे टू रिमेन. और इसलिए बहुत कम लोग हैं जो इससे जुड़ के निभा पाते हैं. बहुत सारे थक के भाग जाते हैं. अभी आपसे मेरा सवाल, जिस तरह तारिक की पहली फिल्में डायरेक्ट करने की, इस तरह आपके लिए भी कैसा आपका किस तरह का अनुभव रहा भट्ट साहब के साथ काम कर? Well, I couldn't ask for more because he's the maestro of the field. So working for the first time with him. मैं जब इसको देखा मुझे बड़ा प्यार आया. इसको तो गले लगाने में एक्टिंग करनी सीखनी पड़ी. इसका शॉट ये था कि मैं इसको देख के इसको गले लगाता हूँ, तो मैंने कहा इतना प्यार आ गया, तो मैंने कहा हमें शॉट में दे दो बस. तो इसको देखकर अपने आप, अभी आप इसको देखिए जरा, इसमें भी इसको देख के प्यार आ जाता है बिल्कुल. तो ये एक्टिंग करनी नहीं पड़ी. इसने ये कास्टिंग करके ही, इसलिए बड़े डायरेक्टर्स कहते थे कि 90% ऑफ द जॉब इज डन बिफोर द कैमरा रोल्स. आप कास्टिंग सही कर लीजिए, बाकी लोग जो है वो कैरेक्टर जो लिखा होता है उसमें यकीन करना शुरू कर देते हैं. भट्ट सर, अगेन भैया टू योर लेफ्ट, आपने इस फिल्म में डेब्यू एक्टिंग की है, एक्टिंग का डेब्यू किया हुआ है, तो व्हाट मेड यू सो लॉन्ग फॉर नो मेकिंग एन डेब्यू? मैंने कोई डेब्यू अभी नहीं किया. ये पता नहीं, they are claiming that it's a debut. I have been a part of some films here and there, but I've never been an actor. But yes, if you see, in a major way, if he has cast a segment with me, it is this. But how it has been, as I said, हम सुबह चले जाते थे. इनको हमने सिर्फ एक ही बात कही थी, भाई हमसे लाइन्स याद नहीं होती. हम ओरल एग्जाम में स्कूल में फेल होते थे, तो हमको सेट पे ले जाके अगर ये आदत नहीं है तो छोटे लाइंस देना हमको, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम मत देना हमको. इसने बहुत ही सरल कर दिया काम हमारा. एंड ही हैंडल्ड मी लाइक अ मदर हैंडल्स अ चाइल्ड.
and he made the entire experience very pleasant. तारिक, आपसे जानना चाहूँगी कि जब ऑन बोर्ड कभी ऐसी मूवी आती है जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं तो उसमें काफ़ी विवाद भी होता है, तो उस पर कुछ किस तरह से आपने तैयारी की उसको लेके? मेरा विवाद से वो नहीं है कि मेरी फिल्म कोई विवाद करे या उसकी कोई तैयारी है। मुझे लगता है अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो वो अच्छी है, उसमें विवाद की कोई ज़रूरत नहीं। I think, and with that we have run out of questions. Thank you. Thank you very much. मुंबई सिटी पहली बार आप पूरी एक ऐसे सेट के आपने कैमियो किया है, ये पहली बार पूरी एक्टिंग कर रहे हैं, पिक्चर के बारे में? तारीख ने जब ये मुझे कहा कि वो इस इशू पे फिल्म बना रहा है जिसको हमें स्पॉटलाइट करना चाहिए, और ख़ास करके इसमें एक दूसरा पहलू जो है कि जहाँ पर हमारे अलग अलग मज़हब के बीच में जो एक स्पेस है उसको कम करने का एक नैरेटिव इन्होंने बुना है, तो मुझे लगा कि इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए इनकी बात मानकर मैं सेट पे आया। मगर अगर इसमें मेरा काम बहुत अच्छा है तो ये तारीफ़ डिज़र्व करते हैं तारीख, और बहुत बुरा है तो पत्थर भी उन पर ही मारिए, मैं एक्टर नहीं हूँ। सर, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं मुंबई या पूरे वर्ल्ड में किसी ना किसी इशू से लोग मर रहे हैं, आज भी इस तरह का विवाद चल रहा है, तो पेट्रोल को लेकर लोग परेशान हैं और विवाद चले आ रहे हैं, आज भी मुंबई बंद है, इस पूरे मामले में आपका क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि विश्व में माहौल ये बन गया है कि हर कोई जो है अपनी ज़िंदगी से कुछ परेशान सा है, मगर ऐसा नहीं कि पहले मर्तबा इंसानियत पे ये आफत जो है अचानक बरसी है, ये इतिहास में होता रहा है, मगर इस दौर में कहीं पर हमारे कनेक्टिविटी की वजह से हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं और इस इश्यू को लेकर हम उस पर डिस्कशन खुल के करते हैं। मगर हाँ, आज की तारीख में एक फ़र्स्ट क्लास सिटी में अपनी सेकंड क्लास इनकम को लेकर गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, इसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं और इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं कि वो अपनी जान भी ले लेते हैं। सड़क की बात करें, सड़क कौन सी पिक्चर है, कौन बना